چلو آج اجرا کریں گے لم یذهب زید الی الحدیقہ. یہ ایک جملہ ہے، حدیث نہیں ہے، ایک خارجی جملہ ہے. اس میں انشاءاللہ آج اجرا کریں گے. تو سب سے پہلے بتائے کہ لم یذهب یہ کون سا صیغہ ہے؟ لم یذهب. یہ جہد کا حضرت، جہد معلوم ہمیں؟ نفی جهاد بلا در فعل مستقبل معروف. تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب راحت نفیجات بلم در فعل مستقبل معروف. چلو تو ذهب یذهب باب فتح یفتح اور معنی ہے جانا. ٹھیک ہے. چلو اب نحمیر کی طرف آ جائے. لم لم مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں اسم فعل حرف. یہ حرف ہے، معرب مبنی میں سے مبنی ہے. آگے عامل اور غیر عامل میں سے عامل ہے. عامل کی دو قسمیں، عامل لفظی اور عامل معنوی ہے. عامل لفظی پھر عامل لفظی کی تین قسمیں، حروف عاملہ، اسماء عاملہ اور افعال عاملہ. یہ حروف عاملہ. تو حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، عامل در اسم اور عامل در فعل. تو حروف وہ حروف جو فعل میں عمل کرنے والے اس کی دو قسمیں ہیں، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. تو یہ جو لم ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہے. یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کر اور فعل مضارع کے آخری لفظ کو، حرف کو جزم دے دیتا ہے. سمجھ میں آیا لم کے بارے میں؟ جی حضرت. باقی ساری سمجھ گئے کہ عامل ہے، عامل لفظی ہے، اور عامل لفظی کی تین قسمیں، حروف عاملہ اور اسماء عاملہ اور افعال عاملہ. تو حروف عاملہ یعنی وہ حروف، یعنی حروف عاملہ کی پھر دو قسمیں بنتی ہے. ایک وہ جو اسم پر داخل ہوتا ہے، حروف مشبہ بالفعل، لا فی جنس اور حروف جارہ، یہ حروف عاملہ ہے لیکن یہ اسم پر داخل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ حروف جو فعل پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل ہو کر اس میں عمل کر دیتا ہے. تو اس کی دو قسمیں، حروف ناصبہ، حروف جازمہ. حروف ناصبہ نصب دے دیتا ہے، حروف جازمہ جزم دے دیتا ہے. تو یہ جو لم ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہے. اور آگے آخری جو فعل مضارع کے آخری لفظ کو وہ دیا ہے، جزم دیا ہے. سمجھ تم بھائی؟ چلو آگے. اب لم یذهب مفرد ہے اور معرب ہے. معرب ہے. پھر آگے فعل مضارع اعراب کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں، وہ ذرا نکال دینا ہو میرے لیے. فعل مضارع اعراب کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں. مانوی کتاب کو یہ کس صفحے پر ہے عبد الرحمان؟ اس میں مضارع یہ پیج نمبر 14 ہے، 14 نمبر پیج. یہاں پہ لکھا ہوا ہے مضارع کے اعراب تین ہیں، رفع نصب جزم. تو نمبر ایک صحیح جو اس میں ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، تو تثنیہ اور جمع مذکر واحد مؤنث حاضر کے لیے اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا اور نصب فتح کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ ہوگا. جیسے وہ یضرب، یضرب، لن یضرب، لم یضرب. تو یہ پہلے قسم ہے فی المضارع کا لم یضرب، لم یذهب. حروف فی المضارع اعراب کے بعد سے چار قسمیں ہیں. پہلا یہ کہ صحیح مضارع یعنی فی المضارع صحیح ہو اور ضمیر مرفوع بارز سے خالی ہو.
उस सूरत में उसका रफा ज़मा के साथ होगा और नस्ब फतह के साथ होगा और जज़्म सुकून के साथ होगा। तो यहाँ पे फिल मुजारे सही है, ठीक है भाई। तो अब उसका एराब है जज़्म, हालत जज़्म की है, हर्फ जज़्म दाखिल है। अब जो फिल मुजारे का जो आखिरी लफ्ज़ है उसके ऊपर सुकून होगा यानी जज़्म होगा। समझ में आया? जी हजरत समझ आया। ये फिल मुजारे के एराब समझ में आया ना कि ये फिल मुजारे बेतबार एराब की 4 किस्में हैं। तो ये पहली किस्म है कि जो मुजारे सही हो यानी हर्फ इल्लत उसमें ना हो और ज़मीर मरफू बारिश से खाली हो। तो लम यदरिब तो लम यदहब, ठीक है भाई। तो हालत जज़मी में जब हालत जज़म की हो तो सुकून होगा। तो लम हर्फ जज़म दाखिल हो तो आगे जो बा है उसके ऊपर सुकून होगा, लम यदहब। समझ गए? जी चलो अब आगे ज़ैदुन मुफरद है और इसम है, मुअरब है, मारिफा है, मारिफा बारिफ लाम है, ठीक है भाई। और आमिल मामूल में से मामूल है। तो और मुफरद मुसरिफ सही है। इलल हदीक़ती इला मुफरद हर्फ मबनी आमिल आमिल लफ्जी और आमिल दर इसम। जैसा अभी हमने कहा ना कि हरूफ आमिला की 2 किस्में, आमिल दर इसम और आमिल दर फेल। तो ये आमिल दर इसम है। समझ तुम? आगे अल हदीक़ती इसम, मुफरद इसम मुअरब और मामूल, यानी इला ने इसके ऊपर अमल किया है, उसको जर दिया है। तो समझ में आया? जी हजरत। जी चलो अब ये एक तरकीब हो गई, यानी हर लफ्ज को पहचानना, हर लफ्ज को जानना। अब हमने हरफ लम जाना, लम यदब जान दिया, ज़ैदुन भी मालूम, इला भी, अल हदीक़ा। हर लफ्ज के बारे में हमें मालूम है कि इसम है फेल है, इसम है तो आमिल है, मामूल है, फेल है तो उसका एराब क्या है, और हर्फ है तो आमिल है, मामूल है, ये सब कुछ मालूम हो गया। अब आगे अ, आपस में क्या निस्बत है, ठीक है भाई। तो लम यादब जैदुन का आपस में फेल फाइल का ताल्लुक है, और इला और अल हदीक़ की दर आपस में जार मजरूर का ताल्लुक है, ठीक है भाई। अब वो जो लम है, लफ्ज लम मबनी अल फतहा, यानी ये मबनी है तो मबनी अल सुकून है। लम यदहब ये मजजूम है हरफ जज़म, लम की वजह से इसके ऊपर सुकून है, यदहब बा पर। जैदुन इसके ऊपर जो दो पेश है फाइल होने की वजह से, और हदीक़त के नीचे जो ज़ेर है ये इला हरफ जर की वजह से है। तो ये वाली तरकीब भी समझ में आ गई भाई? जी हजरत। जी आगे। हाँ। सर अब इसकी तरकीब हम कैसे करेंगे? लम यदब फेल, जैदुन उसका फाइल जी फाइल, इला जार, अल हदीक़ती मजरूर। जार मजरूर, मजरूर जार मजरूर मिल के मफऊल हुआ। ये मुताल्लिक़ हुआ लम यदब के लिए, मुताल्लिक़ हुआ लम यदहब जी। के लिए। तो लम यदब फेल अपने फाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया, ठीक है भाई। अच्छा समझ है में तो। आया? जी जी हजरत यहाँ तक तो समझ आ गई। इससे हजरत लम यज़हब फेल है और जैदुन फाइल है, तो हजरत फेल फाइल जब आगे तो साथ में मफऊल की जरूरत होनी चाहिए ना जी। तो ये फिर कैसे हम्म। पहचान करेंगे कि जार मजरूर को मुतअल्लिक करना है या मफऊल बनाना है? तो आपने पहचानेंगे उससे कि फेल की 2 किस्में, फेल मारूफ की 2 किस्में, लाजिम और मुतअद्दी। लाजिम हो तो मफूल की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये लाजिम है, ठीक है, तो अब मफूल की जरूरत नहीं है। चलो तो अब इसका तर्जमा ये सुने। अब इसका जी जी। तर्जमा हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम तर्जमा शुरू करेंगे फ़ाइल से, ठीक है, जैद। और फिर
इल हदीका मुतालिक का तर्जमा जैद नहीं सबसे पहले जैद का तर्जमा करेंगे फ़ाइल और फिर नहीं तो लम हर्फ जाजिम है और फिर मुजारे को नफी के माने में कर देता है। अब हम इसका तर्जुमा करेंगे कि जैद नहीं, लम जैद नहीं, जैद बाग की तरफ नहीं। सबसे पहले जैद का तर्जुमा फिर इलल हदीका की तर्जुमा कि जैद बाग की तरफ नहीं गया। ठीक है तो नहीं गया ये फेल है तो फेल का तर्जुमा हम आखिर में करेंगे। जैद बाग की तरफ नहीं गया। समझ में आया भाई? जैद बाग की तरफ नहीं गया, जैद बाग नहीं गया। सबसे पहले फाइल का तर्जमा फिर मुतालिक और फिर आखिर में फेल का तर्जमा करेंगे। समझ में आया भाई? उस्ताद जी दोबारा दोहरा दें। जी हजरत समझ आ गया हजरत। चैट में मैंने लिखा है कि तर्जमा करते हुए पहले फाइल फिर मुतअल्लिक और फिर आखिर में फेल। हजरत ऐसे अगर फाइल मफऊल और फेल हो तो फिर पहले फाइल का तर्जमा फिर मफऊल का और आखिर में फेल का, ऐसे ही है हाँ जी। जब जब ये तो हम जब इजरा करेंगे तो इजरा के साथ साथ जब मफूल को तो मुतालिक मफूल मुतालिक बताएंगे। अब यही पे ये तीन चीजें हैं ना, फेल है, फाइल है और मुतालिक है। अब ये तीन चीजें समझे तो जब ये तीन चीजें जब आएगी कहीं पे तो आप उसको तरकीब के उसूल के मुताबिक फिर तर्जमा कर सकोगे। तो बस यही तीन चीजें यहीं पे समझे और इजरा कर ले तो फिर जब मफूल आ जाए, मुतालिक आ जाए, मफूल फी मफूल लहू आ जाए और अगर मौसूल सिफत आ जाए तो फिर हम उसके मुताबिक बताएंगे कि अब यही पे ये तर्जमा होनी चाहिए। ठीक है भाई? तब ये आपस में दोहरा दे, चार तरकीब हो गई और तर्जमा तर्जमा करने का तरीका। तभी सारे साथी मिल के आपस में तकरार कर ले, आपस में दोहरा ले। ठीक है भाई?